ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਓਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਟਿਊਬਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਲੌਕ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਮਾਸ ਵਾਲੀ ਰਸੌਲੀ ਰਾਈਟ ਫੈਲੋਪੀਅਨ ਟਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਔਰ ਜੀ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਓਵਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਪਲ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਰਸੌਲੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਔਰ ਜੀ। ਇੱਕ ਰਸੌਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੜ ਵਾਲੀ ਯੂਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਰਸੌਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ 'ਚ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੈਗੇ ਸੀ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੰਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਪਾਪਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਟਿਊਬ ਬਲੌਕ ਸੀ ਤੇ ਖੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਟਿਊਬ ਜਿਹੜੀ ਫਲੋਪਿਨ ਟਿਊਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕੱਢਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਤਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਵੀ ਬੇਬੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਧੀ ਪਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਂਜੀ, ਟਿਊਬਾਂ ਖੁਲਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 7 ਹਸਪੀਟਲ ਘੁੰਮ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। 8ਵੇਂ ਹਸਪੀਟਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਰਸੌਲੀਆਂ ਵੀ ਕਢਾ ਲਈਆਂ, ਸਫਾਈ ਕਰਾ ਲਈ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਕਲੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ IUI करवाओ। ਹਾਂਜੀ पापा जी। अपोस्टल जी, मार्च 2023 में इनका IUI हुआ और मई 2023 में इनका IVF हुआ और दोनों ही वो असफल रहे। डॉक्टर ने इनको बोला कि अब दोबारा से फिर से आपका IVF करेंगे, पर हमारी इस चीज़ के लिए कोई गारंटी नहीं है कि आप कभी माँ बन पाएंगे, और 1% भी गारंटी डॉक्टर नहीं देते थे। और इन्होंने 4 साल लगातार दवाइयाँ खाई और हर महीने एग ग्रो करवाने के लिए इनको इंजेक्शन लगता था, और 4 साल हर महीने वो हज़ारों रुपए का इंजेक्शन महंगा होता था, उसको लगाते गए। 8 हॉस्पिटल बदलने, रसौलियों का ऑपरेशन करवा के देख लिया, IVF IUI सब कुछ करवा के देख लिया, कोई रिजल्ट नहीं था। उम्मीद पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। और IVF भी करवा लिया, IUI भी करवा लिया, ऑपरेशन भी करवा लिया, दवाइयां भी खादियां, 4 साल हर महीने इंजेक्शन भी लगा के देखे। ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਮਾਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਸਾਸੂ ਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਸਟਰ ਅੰਕਲ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣੀ ਆ ਭਲਾ। ਮੰਮੀ ਮੇਰੇ ਆਏ, ਚਰਚ ਆਏ, ਤੇ ਮੰਮੀ ਨੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਜਾ ਚਰਚ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚਰਚ ਆਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ। 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲੀ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੇ ਹੈਂਡ ਦਾ ਮੈਂ ਫਾਰਮ ਭਰਾਉਂਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੇ ਹੈਂਡ ਦਾ ਫਾਰਮ ਭਰਾਇਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹੋ ਸੋਚਦੀ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕਰਨਾ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕੀਤੀ। 25/6/2023 'ਚ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਘਰ ਚਲੇ ਗਈ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਇੱਕਦਮ ਹੌਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਘਰ ਗਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਈ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਪੀਰੀਅਡਸ ਰੁਕੇ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਓ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ IVF ਕਰਵਾਉਣ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ IVF ਕਰਵਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ IVF ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕਡ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁੱਕ ਕਰਕੇ ਡੇਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਲੇ ਹੈਂਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ IVF ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆ ਜਾਈਓ। ਫਿਰ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜਿਹੜੀ ਕਰਵਾਈ, ਔਰ ਜੁਲਾਈ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ IVF ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ। IVF ਕਰਵਾਉਣ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ। ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ IVF ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਤੂੰ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਯੂਰਿਨ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਹੈਰਾਨ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਉਹ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਸੁਣ ਕੇ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਫਿਰ ਨਾ ਯੂਰਿਨ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ, ਤੇ ਯੂਰਿਨ ਟੈਸਟ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੂੰ ਨਾ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਸ਼ੌਕ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਰੋਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ क्योंकि जिंदा खुदा है खुदा, जिंदा खुदा है खुदा, क्योंकि जिंदा खुदा है खुदा, जिंदा खुदा है खुदा, जिंदा खुदा है खुदा, जिंदा खुदा है खुदा। हालेलुया। ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਡਾਕਟਰ ਹੈਰਾਨ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਣਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਸੀਨ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੇਡੀ
ਰੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਹੈਰਾਨ ਹੈ, ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ, ਇਹ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਆ। ओह जीसस। सुनो सुनो, अभी टेस्टिमनी पूरी सुनना। जब परमेश्वर आपको देता है ना, उसकी एक निशानियां होती हैं कि नेचुरली ये पॉसिबल नहीं है, इसकी बॉडी वो कंसीव करने के लिए नेचुरली तैयार नहीं है। अगर स्पिरिचुअली हम बात करें तो एक औरत सपने में आती थी, बोलती थी, वो दुष्ट आत्मा बोलती थी। तो यहां बैठे जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो पहली बार आए, सोचते हैं कि ये तो बेकार की बातें हैं। मेडिकली बताओ क्या था, तो मेडिकली सब टेस्ट मौजूद हैं, सब स्कैनिंग्स मौजूद हैं, ऑपरेशन हुआ, सब कुछ हुआ, इंजेक्शंस लगते रहे, कोई प्रेगनेंसी नहीं। जब नहीं हुई तो लास्ट होप होती है IUI के बाद, फिर लास्ट टू लास्ट होप होती है IVF, उसके ऊपर कुछ नहीं होता। वो भी करवा के देख ले, वो फेल थे, सेकंड IVF के लिए बुक थे। लेकिन जब ले हैंड हुआ, उसके बाद जब टेस्ट करवाया, वो पॉजिटिव निकला। उसके बाद टेस्टिमनी सुनना क्या हुआ। और अपोस्टल जी, उसके बाद जब 6 मंथ तक इनकी प्रेगनेंसी अच्छी चलती रही और 7th मंथ में प्रेगनेंसी में जब लेबर पेन इनको अचानक से स्टार्ट हो गई, तो हॉस्पिटल जब लेकर गए तो डॉक्टर ने इमरजेंसी डिलीवरी करने को बोला। और जब डिलीवरी हुई तो प्री मेच्योर बेबी जो था, बेबी बॉय पैदा हुआ। और बेबी को उस समय कितने ग्राम का बेबी था आपका जब पैदा हुआ? 1200 ग्राम का से। इमेजिन। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों, जब परमेश्वर ने दिया? यही निशानी है कि ये परमेश्वर ने दिया। क्यों? मैं बताता हूं क्यों, सुनो। जब आपकी बॉडी नेचुरली तैयार नहीं है कंसीव करने के लिए, और आपकी लाइफ में सडनली आप जब चर्च में आते हैं, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ जब ग्रो करती है, आप एक तरह का एक रास्ता ओपन कर देते हैं। आपको पता है कि लोगों को लगता है कि स्पिरिचुअली मतलब कि ये बेवकूफ लोगों का काम है। आपको नहीं पता, जब आप स्पिरिचुअली ग्रो करते हैं, सडनली आप हेवन का एक वे ओपन कर देते हैं कि जो कुछ आपकी लाइफ में ह्यूमन से, इंसान से पॉसिबल नहीं हो रहा, मेडिकल से पॉसिबल नहीं हो रहा, आपकी ताकत से, आपकी पढ़ाई से, स्किल से कामयाब नहीं हो रहा, हेवन का वो वे ओपन होता है आपको छूने के लिए। इसीलिए जब चर्च में आप लोग आते हो, आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम होती है, आपको बोला जाता है टेस्टिमनी सुनो, वचन को सुनो। आपको स्पिरिचुअली ग्रो करना है ताकि आपके लाइफ में जो वे है, जो रास्ता है, जो खुदा का दरवाजा है, वो खुले और परमेश्वर आपको छुए। अब प्रभु ने छू लिया, सेकंड IVF के लिए पैसे दिए हुए हैं, सब बुक्ड है, जस्ट टेस्ट करवाया तो पॉजिटिव आया, पॉजिटिव टेस्ट कराया तो प्रेगनेंसी निकली। अब प्रेगनेंसी जब हुई तो लेबर पेन स्टार्ट हुई। शैतान जब आपको देखता है कि इसने परमेश्वर की ओर से कुछ पाया है, वो उसको फाइट करता है। और 1200 ग्राम का बेबी, ये 1200 ग्राम मेरे हाथ में पकड़ा होगा, सिर्फ जस्ट इसका ये कवर वगैरह मिला के। 1200 ग्राम कितना होता है? किलो, जस्ट किलो से कुछ ग्राम ऊपर। $1200 ग्राम का बेबी हुआ। लंग्स नहीं बने थे, इसके प्रॉपर नहीं बने थे। हाँ जी पापा जी। कोई गारंटी डॉक्टर्स नहीं दे रहे थे। हाँ जी पापा। क्या हुआ उसके बाद? फिर सुनना। अपोस्टल जी, इन्होंने A&M हॉस्पिटल प्रेयर लाइन के ऊपर बच्चे की प्रेयर रिक्वेस्ट को सेंड किया और 9 जनवरी 2024 की बात है, प्रेयर माउंटेन से अपोस्टल जी आपने जूम ऐप के थ्रू बच्चे के ऊपर ले हैंड प्रे करी थी। उसकी वीडियो है हमारे पास। आपने स्पेशल नाम लिया बच्चे का और उसके लिए प्रेयर करी। प्रीमेच्योर बेबी, अपने हाथों को उठा। सब लोग, सब गेस्ट अपने हाथों को उठाओ इस बच्चे के लिए। इस बच्चे की छाती के ऊपर क्या सूजन है, किस प्रकार की? क्या कोई बता सकता है इसके पास जो है? इसकी छाती के ऊपर क्या है? टेम्परेचर प्रॉब्लम लगी हुई है।
लहू है जिंदे बख्शदा जिंदगी जावे पाक लहू है जिंदे बख्शदा। इस पे अपने हाथों को उठाकर जीवन की आत्मा को इस पे भेजो। जीवन की आत्मा पर, जो कि जीवन देने वाली आत्मा है, वो इस पे जाए। अपने हाथों को उठाओ गैर भाषा। जीसस, आप लाइफ देने वाले खुदा हैं। आपके घर में कोई मौत नहीं है। इस बच्चे को भी आपने बनाया है, प्री मैच्योर नहीं, आज से ये मैच्योर बेबी हो इन जीसस ने। इसके सारे अंग बराबर हो जाए राइट नाउ। सारी सूजन इन्फेक्शन खत्म हो जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। ये बड़ा हो खुदावंद, चर्च में आए टेस्टिमनी को देने के लिए खुदावंद, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आमीन हो जाए बरकत हमारी। बोलो यीशु दे लहू, यीशु दे लहू दीजिए, बोलो यीशु दे लहू दीजिए, यीशु दे लहू दीजिए, बोलो यीशु दे लहू। जो कोई नाच कर इस गवाही को सेलिब्रेट करेगा, वो अपनी गवाही के साथ जल्दी आने वाला है चर्च में। यीशु दे लहू दीजिए, बोलो यीशु दे लहू दीजिए, यीशु दे लहू दीजिए, बोलो यीशु दे लहू दीजिए। लहू दे विच छुटकारा उसदे, लहू दे विच छुटकारा उसदे, बाबा दी माफी है। यीशु दे लहू दीजिए, बोलो यीशु दे लहू दीजिए, यीशु दे लहू दीजिए, बोलो यीशु दे लहू दीजिए। हालेलुया। वो पिक्चर ऐसे ही रहने देना, वो पिक्चर ऐसे ही रहने देना। वो देखो, इधर की पिक्चर दिखाना जरा, इधर जो बिल्कुल लास्ट में है ना, इधर जूम करना। वो देखो, शायद पीछे हाथ है, वो बच्चे के सिर के पीछे, वो देखो हाथ है। नो 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 नो, कौन है अंदर? वो देखो, इधर जो लाल सा बच्चा है, उसके पीछे वो शायद हाथ है ना, वो उंगली है ना, देखो वो उंगली है ना, वो देखो। इससे मालूम होता है आपको बच्चे का साइज क्या था। देखो वो देखो। ओ यस, हाँ, अब फुल पिक्चर दिखाना। नो नो नो, फुल फुल फुल, डबल फुल, यस। अगर आप देखोगे यहाँ आईसीयू में, आईसीयू से भी ज्यादा एनआईसीयू लग रहा है मेरे को। इधर जो ग्रीन बच्चा है, ग्रीन 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 वाले बेल्ट जो नीचे मैट में, उसको जूम करना। ध्यान से छाती देखना बच्चे की। इधर करो, और यस, और करो। नो नो नो, कौन है अंदर? कौन है अंदर? ये आदमी जितना बोला उतना कर अंदर। नो, बैक करो उसे। ये वाला इधर राइट साइड, उसकी छाती। हाँ ये, हाँ ये देखो, ध्यान से छाती देखो इसका। आपको मालूम होगा ये नॉर्मल नहीं था। ये देखा, पहले शैतान होने नहीं दे रहा था, जब हो गया तो वो कहता वापस लेके जाऊंगा। सुनो, जिस जीसस ने पहले दिया था, अगर उसी जीसस के पास रहेंगे तो वो छीनने नहीं देगा।